Good morning. Good morning, everyone. Let us start the chapter number 2, Children at Work by Geeta Wolf. This lesson is from your book It So Happened. This lesson is based on child labor. This lesson is very painful. This is the message for everyone, every human being, that you should help the poor and needy people. It is our responsibility, it is our duty to help others. This lesson teaches how to or why a child is born to work outside. Before starting the lesson, we should know what is child means. Child means to enjoy, child means to play, child means to spread the smile in this world. Child means to spread happiness with the help of their smiles. And that child is going to work outside, it is very painful. Now, why child is going to work, what happened, we will learn in this lesson. Before starting the lesson, the summary, I hope you everyone read this lesson carefully. So, should we start? So, let us start the lesson. Before starting the summary, here something is written. When you have read the lesson, you find the values introduction, who is Value, why he run away from his home, all the answer will be mentioned in that. There is two characters, Value and Jaya. Value and Jaya. Well, who is Value? Value is 11-year-old boy who is very poor and threatened or beaten by his father. And afterwards he decided to leave the home and he run away from the home. Who is Jaya? She is a rat picker, Jaya, who helps Value. Got it? So let us start the key point. Value, an 11-year-old boy, run away from home. वो अपने घर से भाग जाता है, 11 साल का लड़का. He wanders around the hours and gets on a train to Chennai without a ticket. ऐसे होते नहीं है, बिना टिकट का ट्रेन में चढ़ जाता है चेन्नई ट्रेन में. He got off the train at Chennai Central and sat on a bench of the platform. जब वो चेन्नई स्टेशन पहुंचता है, वो उतरता है और बेंच पे बैठ जाता है. Tired and hungry, he doesn't know where to go. भूखा है, थका है, ट्रेन से जर्नी किया हुआ है तो थका है, कुछ खाया नहीं था इसलिए भूखा है और उसके पास कुछ पता भी नहीं है where to go, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. He met Jaya, the rag picker. वो जया से मिलता है जो वहाँ पे रैग पिकर नहीं, कचरा बीनने वाली जो बिनती है वो लड़की, वो उसका काम को तो बोरे में अपने कचरे को उठाती है, डालती रहती है, उससे वो मिलता है. Who called him roughly, जो उससे बड़ा. अब जया को तो पता नहीं है who is Value, why he sitting here, उसको तो पता है नहीं, इसलिए वो बड़ा रफ लैंग्वेज में उससे बात करती है. Value thought that she was his only hope and followed her. वो Value को लगता है कि यही एक ऐसी लड़की है जिसको हम फॉलो करेंगे तो मुझे मंजिल तक या कुछ रास्ता दिखेगा इस अनजान शहर में. They walked through the busy streets and saw the central jail and reached at auditorium where a wedding was going on. वो निकलते हैं, घूमते हैं, वॉक थ्रू सेंट्रल, बहुत ही सड़कें बहुत ही व्यस्त हैं, उन सड़कों से होके गुजरते हैं, देखते हैं सेंट्रल जेल को. वहाँ एक पहुँचते हैं एक ऑडिटोरियम में जहाँ पे एक शादी जो है ना वो अब हो रही थी. Value and Jaya got a वड़ा एंड अ एक्सप्रेस बनाना टू ईट. उनको कचरे के ढेर में से वो सब मिलता है. They walked to half an hour and reached near a row of strangers hearts he had ever seen. और वो घंटों आधे घंटे तक चलते हैं, फिर उनको मिलता है कि स्ट्रेंज हट मिलता है जहाँ पे वो चलने के बाद उनको मिलता है, वहाँ रुकते हैं वो. Jaya went around to
one of them and dumped her sack of papers, plastics and bottles and picked up an empty one. वहाँ पे अपने जो बैग होता था उसको वहाँ पे खाली करती है, फिर वहाँ पे जो खाली बॉटल्स होते हैं सारी उसको वो भरती है. She saw a pair of old shoes and pushed a sack and a stick into the hand. फिर वो रेडी हो जाती है, शूज़ पहनती है, वो ग्लव्स पहनती है, स्टिक लेती है और फिर वो अपने काम पे रेडी. She threw a pair of old shoes. वो पुराने जूतों को फेंकती है and push a sack and a stick. पुराने जूतों को फेंक करके अपने हाथों में स्टिक लेती है, वो अपने काम पे लग जाती है. In confusion he asked her, "Are there farms in the city?" वो कंफ्यूज में पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई फार्म है इस शहर में. And got the answer that there are no farmers here. और उसको आंसर मिलता है कि नहीं भाई यहाँ पे कोई फार्मर नहीं है इस शहर में. He decided to be a rag picker, thinking that he will do it till the finds a better job. और वैल्यू जो कहता है, वैल्यू कि जब तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक उसे कोई काम नहीं मिल जाता, तब तक वो भी क्या होगा, रैग पिक करने का काम करेगा. ये आपने रीडिंग किया होगा तो ये सारे सिचुएशन आपको लाइन बाय लाइन होती हुई गुजरी होंगी. सो ये कहानी आपका थोड़ा सा था. अब हम लोग इसको में स्टार्ट करेंगे इसकी समरी को. सो लेट अस स्टार्ट द समरी. चिल्ड्रन एट वर्क इज अ सेंसिबल स्टोरी बाय गीता वुल्फ. हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चिल्ड्रन एट वर्क है वो गीता वुल्फ की एक सेंसिबल कहानी है. विच फोकस ऑन द लिविंग ऑफ स्लम चिल्ड्रेन. जो फोकस करती है कहाँ पे, सेंट्रलाइज है वो जहाँ पे जो स्लम समझते हैं, जो वो झोपड़ झुग्गियों में या उस ऐसे तबके की कहानी है जहाँ बच्चे निवास करते हैं. दिस स्टोरी teaches us to be emphatic with these children and help whatever we can. और ये बताती है कि हमें कभी लोगों की मदद करनी चाहिए, जोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को. दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स अ बॉय नेम्ड वैलू. इसमें एक बच्चा है जो कहानी जिस पे बेस्ड है, जिस बच्चे का नाम है वैलू. ही वॉज ए स्मॉल बॉय ऑफ 11 ईयर. वो एक छोटा बच्चा है, वो 11 साल का एक छोटा बच्चा है. हिज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड. His father used to beat him and his sister and used to snatch every money and earn. जो कुछ भी कमाता है उसके पिताजी क्या होते हैं, शराबी होते हैं. जो भी कमाता है पैसा उसकी बहन उसको परेशान करते हैं, उसके पिता उसको मारते हैं. वैल्यू जो होते हैं बार बार मार खाता रहता है. ठीक है, फिर क्या होता है, वैल्यू वॉज फेड अप मतलब परेशान हुआ, फेड अप विद द डे टू डे abuses and decided to run away from home. रोज रोज के वो इस क्रियाकलाप से तंग आ गया था, रोज रोज मार खा के परेशान हो गया था. उसने तय कर लिया कि वो क्या करेगा, वो निकल के भागेगा. He walked all the day in कानपुर. वो कानपुर पूरे दिन भटकता रहा. और डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, देखिए कन्नौर है. कन्नौर जो तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ पे वो भटकता रहा, दिन भर भटकता रहा. एंड लेटर ऑन बोर्डेड कन्याकुमारी एक्सप्रेस. और बाद में वो एक कन्याकुमारी ट्रेन का नाम है उसमें वो चढ़ गया. कन्याकुमारी एक्सप्रेस ब्रॉट हिम टू चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. और ये इसको कहाँ लेके आती है, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में. तो ये आपका पहला था कि वैल्यू का इंट्रोडक्शन था कि वैल्यू कैसे वहाँ से निकला. ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो जब उतरा, आगे की स्टोरी आपको मैंने पहले बता रखी थी. चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे क्या था, एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है. वैल्यू वहाँ पे पहुँचता है, देखता है कि वहाँ चारों तरफ अपने सूटकेस उठाए लोग भागे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है. वैल्यू वॉज फेड अप, मतलब वैल्यू को क्या ये सब देख करके परेशानी होती है, कहता है क्या हो रहा है भाई, मैं कहाँ आ गया. ये पूरा भगदड़ था क्योंकि उसने शायद फर्स्ट टाइम देखा था. वो बस टीवी स्क्रीन पे ही देखा था, इतना भीड़, लेकिन यहाँ पे सामने था. A loudspeaker was shouting with announcements. Some people were watching a big TV screen. Some were sitting on the platform. Vallu was feeling very weak and his legs were sagging. भूख के मारे, उसको भूख लगी थी, भूख के मारे उसका पैर जो है ना वो कांप रहा था. सभी लोग देखा था इधर उधर घूम रहे हैं. भाई स्टेशन पे जितनी भगदड़ होती है वो शायद पहली बार जिंदगी में उसने देखा था ऐसा. He had come to Central in an unreserved compartment. वो वहाँ पे जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व कंपार्टमेंट से होकर आया था, जिस उसने टिकट भी नहीं कटाए थे. यात्रा की वजह से वो रात भर जगा था,
whole night. Velu felt miserable in very new place and sat on a bench. उतरा, नई जगह पे आया तो वो कहाँ पे बैठ गया, वो एक बेंच पे आके बैठ गया। ये कहानी थी आपका चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की। अब वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है किससे, रैग पिकर जया से उसकी मुलाकात होती है, जो कचरा बीनने वाले, रैग पिकर मतलब कचरा बीनने वाले। देखता है कि रैग पिकर स्मॉल गर्ल विथ ब्राउन एंड डर्टी हेयर नेम्ड जया saw him and talked about him. वो मिलती है, उससे बात करती है। स्टार्टिंग में जो वैल्यू होता है ना, वो उससे बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसके लिए अजनबी थी, स्ट्रेंजर थी, तो क्यों बात करे अजनबी से, इसलिए वो बात करना नहीं चाहता था। जय ने उसको बताया कि भाई उसके भोजन की व्यवस्था कर सकती है, देखो भाई तुम भूख लगा है तुमको, तुम कमजोर दिख रहे हो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती हूँ, है ना। अब क्या हुआ, अब वो इसको थोड़ा सा अंदर से लगा कि वैल्यू वेंट बिहाइंड हर, अब उसके पीछे पीछे कहा कि भाई खाना दे सकती है, तो कहा मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, चलो इसी को फॉलो करते हैं। तो वैल्यू वेंट बिहाइंड हिम, उसके पीछे लग गया। शी टुक हिम टू बिजी रोड विथ हाई ट्रैफिक एंड डस्ट, उसको वहां से लेके जाती थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसने देखा वैल्यू इतनी गाड़ियों से कभी उसने इतना भीड़ भाड़ देखा नहीं था, बड़ा डर लगा था। रास्ते में उसको एक जो सेंट्रल जेल ना उसके पास आया, जया ने उसे पुलिस की चेतावनी दी, क्योंकि पुलिस वाले क्या करते हैं ना, कचरा बीनने वालों को अच्छा नहीं समझते। हम लोग के यहाँ कचरा बीनने वाले को बुरा माना जाता है, जो कि सबसे अच्छे तो वही हैं जो हम लोग कचरा फैलाते हैं उनको वो साफ करते हैं, तो सफाई वाले हो गए। कचरा फैलाने वाले तो हम लोग हैं, तो नफरत हमसे होनी चाहिए ना, उनसे क्यों, वो तो हमारी गंदगियों को साफ करते हैं, तो नफरत उनसे क्यों, वो तो हमारे किए गए गलत कामों को साफ करते हैं। तो ऐसा हमारे समाज की टेंडेंसी है, लेकिन हमें ही बदलना होगा। लास्ट में क्या होता है, वो लोग मैरिज हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पे उसे बड़े कचरे का ढेर रखा हुआ था। जय को वहाँ 2 केले और एक बड़ा मिलता है, केले और बड़ा वैल्यू को दे दिए कि लो भाई तुम भूखे हो, तुम खा लो। वैल्यू कचरे में फेंके गए खाने से हिचकिचा रहा था, कहता भाई नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम है, मैं ऐसा कभी किया नहीं, मैं कभी खाया नहीं है। तो अब उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन वो भूख था। हंग्री पीपुल चूजर नहीं होते हैं, बेगर कांट बी चूजर, ये कहा गया है, बेगर कांट बी चूजर। इसलिए उसको मजबूरी थी, कोई उसका ऑप्शन नहीं था, तो उसने क्या किया, खा लिया। अब उसने खाना तो खाया, अब क्या हुआ, दोनों साथ में खाए, भाई एक तो खाएगा नहीं। नाउ दे टुक हिम टू ओन होम, अपने घर ले गई। इट वाज अ स्लम हाउस, वो एक क्या था, झोपड़ी था, मेड ऑफ ब्रोकन स्टील शीट से बना हुआ था एंड अदर यूजलेस मटेरियल्स लाइक एन ओल्ड टायर, प्लास्टिक शीट्स एंड ब्रिक्स। इस सबसे उसका झोपड़पट्टी थी, झोपड़ी बनी हुई थी। जया gave him a big sacks and asked him to help her. अब उसने उसको बड़ा सा गट्ठर दे दिया, कहा कि लो अब तुम मेरी मदद करो। Velu was curious about why Jaya collects useless materials. बड़ा उत्सुक था जानने के लिए कि आखिर इन मटेरियल्स को क्यों इकट्ठा करती है, क्या करती है। तो जया ने कहा कि भाई she sells it to a scrapper, वो उसको बेच देती है स्क्रैपर्स को, है ना, क्योंकि कबाड़ी वाले को बेच देती है, उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। सेंड इट टू अ फैक्ट्री, फिर क्या करते हैं, उसको फैक्ट्री में देते हैं जहाँ पे इन प्लास्टिक एंड पेपर का रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहा था कचरे कभी भी इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, एक व्यवस्थित जगह पे उसको रखना चाहिए ताकि उसका रिसाइकिल हो सके, इनटू अ न्यू हो जाए। वैल्यू वाज नॉट हैप्पी विद द जॉब, वो इस नए काम से खुश नहीं था, लेकिन मरता क्या ना करता, he decided if he gets another job he will leave this dirty job। कहा जब मैं एक अच्छा जॉब पा लूंगा तो मैं इस काम को छोड़ दूंगा। ये आपकी इस लेसन की समरी है, आई होप समझ में आया होगा आपको। आप लेसन को दोबारा फिर से रीड करिएगा अपने बुक का, टेक्स्ट बुक का, और फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, आपको लेसन पूरा समझ में आएगा, आप क्वेश्चन आंसर सभी कर लेंगे। अगर आपको समरी समझ में आ गया होगा तो आपके इस नीचे आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग प्रेस कर दोगे, बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दोगे, पसंद आया होगा तो लाइक बटन को आप जरूर से प्रेस कर दोगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। टिल देन गुड डे।